Hello everyone, here we are on the taxonomical hierarchy, next part of the chapter 1 of class 11. Before starting, I want to mention that this PDF link is also available on your YouTube channel below that video that you will see in the last video, right? In last video I will add this PDF so that you'll be able to read from this too. These all notes are based on NCERT and I've just shortened them up. Taxonomical hierarchy, right? So we are starting with this term, hierarchy, taxonomical hierarchy. Taxonomy, you have already read. Taxonomy means arrangement, right? Arrangement of organism or classification of an organism is taxonomy, right? हम किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को जब एक ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं, दैट इज बाय अ प्रोसेस, राइट? दिस इज नोन एज टेक्सोनॉमी अलॉन्ग विद इट्स लेबलिंग, राइट? नाउ हायरार्की क्या है? एक नई टर्म इसमें ऐड हुई है, हायरार्की, राइट? व्हाट दैट मीन्स, ओके? Organisms, so let's see the definition first, okay? Organisms are arranged in hierarchical order into different groups on the basis of degree of similarity, right? On the basis of degree of similarity. It is called as taxonomical hierarchy or taxonomic hierarchy. So I have drawn this diagram already so that we will take a less time. Sorry. So you can see this is a smaller circle and this circle. This is a kind of concentric circles I have prepared, right? In this, the smaller circle belongs to the people that lives in Delhi, right? They have many things in common as compared to the other states, right? Many other states along with Delhi are part of a larger group that is India. India is a country, and this country along with other countries is a part of other larger group that is Asia, right? Asia is a kind of continent. Along with other continent, it is again a part of larger group, rather larger group, that is other continents, right? All continents, and continents and oceans will be the part of what? Earth. Continent and ocean will be the part of the are the part of Earth. Okay, so smaller, larger, and largest. That's how the hierarchy goes. Okay, so यहाँ देख रहे हैं आप, छोटा एरिया है, थोड़ा स्मॉल एरिया है, तो इनमें ये लोगों में ज़्यादा सिमिलैरिटी है, राइट? और जैसे जैसे सर्कल बढ़ता जा रहा है, यानी नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जा रहे हैं, सिमिलैरिटी कम होती जा रही है. यानी आप जब इस स्मॉलर सर्कल से लार्जर सर्कल पे आएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं, राइट? लेकिन सिमिलैरिटी उनके बीच में घट रही है क्योंकि वो जोग्राफिकली अलग अलग और दूर दूर होते जा रहे हैं, राइट? ओके, सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल. सो वी हैव टेकन 6 ऑर्गेनिजम्स, 6 लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि कैट्स, लायंस, शार्क, स्टारफिश, फ्रॉग, ह्यूमन बींग्स. दे ऑल लाई इन वन लार्जर ग्रुप. वो एक लार्जर ग्रुप के पार्ट है, एनिमलिया. सो लेट्स सी, दिस लार्जर सर्कल इज ऑफ एनिमल्स. फर्दर, cats, lions, shark, frog and human are part of chordates. So next smaller circle are chordates. So this circle is chordates. So animal, उसके अंदर chordate, right? And जो हमारे स्टारफिश और बची थी, इन पांचों में से जो जो 6 में से एक 6th वन था, वो स्टारफिश किस में आती है? नॉन कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स वो हैं जिनमें वर्टेबल कॉलम होती है फॉर देयर होल लाइफ. दे हैव रीढ़ की हड्डी उनके पास है, राइट? शार्क्स, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, इन पांचों में से भी शार्क्स आर अंडर फिशेस, फ्रॉग्स आर अंडर एम्फीबियंस एंड अदर्स आर मैमल, राइट? सो इन पांचों में से भी अब मैमल्स हैं, राइट? So we can see this larger circle is of, if we take this as an example, larger circle of animal. In animal we have taken chordates, and in chordates even we have taken mammals, right? Okay, so ये 6 के 6 सारे के सारे क्या है? एनिमल्स हैं. फिर इनमें से 5 जो हैं वो क्या है? कॉर्डेट हैं, लिविंग दैट स्टारफिश. फिर इनमें से 3 यानी कैट्स, लायंस एंड ह्यूमन बीइंग, दे आर मैमल्स. सो ऑर्गेनिज्म का लेवल कम होता गया लेकिन उनके अंदर सिमिलैरिटी बढ़ती गई. नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस एंड सिमिलैरिटी इंक्रीजेस. दिस इज कॉल्ड एज हायरार्की.
taxonomic hierarchy is made up of several components. This hierarchy is made up of several components. These are called as category. हर लेवल पे एक component होते हैं उसके, और हर लेवल को क्या कहते हैं? taxonomic category. So we have categories such as species, genus, right? Now what is species, what is genus? You need to know what is species. That is very must. Right, when we are saying this is a species of organism, what that means species, right? Two or more individual can be a part of species when they have similar fundamental characteristics. बहुत basic character उसमें same हो, so that they can breed together, right? When they can breed together, then this is known as species. Okay, group of these species, group of similar species is known as genus. जो species related हैं उनको क्या कहते हैं? जीनस. दैट हैव मोर थिंग इन कॉमन एज कम्पेयर टू द अदर स्पीशीज. दूसरे स्पीशीज से ज़्यादा कॉमन है, इसलिए उसने एक ग्रुप में डाल दिया जिन्हें हम जीनस कहते हैं. ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस और जेनरा इज नोन एज फैमिली, राइट? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली इज नोन एज ऑर्डर. एंड फर्दर ऑन, लाइक क्लास में भी यही है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, राइट? ओके, देयर इज अ डिफरेंट थिंग, फाइलम एज वेल एज डिवीजन. कौन सी टर्म लें, तो ये भी हम देखते हैं कि फाइलम कब लेना है, डिवीजन कब लेना है. बट ग्रुप ऑफ क्लास इज नोन एज फाइलम और डिवीजन. ग्रुप ऑफ क्लासेस आर नोन एज फाइलम और डिवीजन. देन किंगडम, a very larger group with a very few similarities, with a very large group of organism is known as kingdom. Okay, so let's see this concentric circle again. Now let's see the smaller circle is species. The group of many other species along with this related species is known as genus, right? Group of genus is known as family. Group of family is known as order, right? Order. Okay, and group of order, then classes, group of classes, division, group of division, kingdom. Okay, now why in these two diagram you can see why division here and why phylum. Kingdom के नीचे ये phylum क्यों है और यहाँ पे division क्यों है? All other things are same, right? Why? So there is a reason behind it. You can see there is a term written animal. When we are talking about animal kingdom, always below that kingdom the category will be phylum, and when we are talking about plants, then below the kingdom the category will be division. Okay, so this is the difference. Now you can see this, right? Creature, okay, it belongs to kingdom animal, okay, that you know. Then it have a vertebral column for whole its life, so it is called ape, right? Then its class is apes because it is a bird, then its class is apes. Order family Pachyformes and Corvidae. Genus वही होगा जो हम species के नाम में पहली बार लिखेंगे, so Corvus, right? And species is Corvus corex. Now the name that is written, I apologize for that thing, I have just taken it from the net as a picture form, so I cannot change this. But the name that is written that have a fault because आपने ये पहली चीज़ पढ़ी है, okay, and आप इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं. So this can be a test for you. You can see that in nomenclature, whenever we are naming a scientific name to an organism, Corvus corex if it is name, it should be italics when it is printed. क्योंकि ये अभी print है, ये एक तरह से आपका एक नेट का पार्ट है, तो ये italics में होना चाहिए था, जो कि ये नहीं है. यहाँ पर पहला लेटर जीनस में कैपिटल होता है, लेकिन दूसरा लेटर क्या होता है? स्मॉल होता है. सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग थिंग दैट दे हैव डन, राइट? बट द नेम इज करेक्ट. कॉर्वस कॉरेक्स इज द नेम ऑफ क्रो. ओके, ये आपको एक प्रीफिक्स दे रखे हैं लाइक डिवीजन के लिए. एंड में फाइटा आता है, जैसे अगर क्लोरोफिल कंटेनिंग लीव्स हैं तो डिवीजन क्लोरोफाइटा, राइट? क्लास ए ई, क्लास में ए ई आता है. ऑर्डर में ए एल ई एस आता है. फैमिली जैसे कि मैंगो की फैमिली है एनाकार्डिएसी, तो ए सी ई ए ई आता है. वीट की पोएसी, तो ए सी ए ई एंड में आता है. सफिक्स का मतलब कुछ और नहीं है. सफिक्स मीन्स प्रत्यय जो वर्ड के पीछे लग जाए, तो ये कई बार सिमिलर होते हैं प्लांट्स में. सो दिस इज़ गिवन जस्ट फॉर योर हेल्प.
whenever you write the name. Okay, so this is about the taxonomical categories and taxonomic hierarchy. Now अगर हमें ये ना पता हो कि कौन सा ग्रुप है, ये स्पीशीज़ है, ये जीनस है या कुछ है, तो ये तो पता है कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है. ओके, एनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज टेक्सा और टेक्सॉन. किसी भी लेवल पे अगर बात कर रहे हैं तो अगर वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है तो उसका मतलब वो टेक्सा है. ग्रुप मतलब टेक्सा, राइट. एंड टेक्सा इज यूज्ड व्हेन देयर आर नॉट वन ग्रुप, देयर आर ग्रुप्स, right. When we are talking about groups, then it is taxa. When we are talking about single group, then it is taxon, right. So each taxonomic category represent a different taxon. species के groups की बात करेंगे तो एक taxa है, genus के groups की बात करेंगे तो again ये एक taxa है, right. Another term is systematic. Systematic is a science of arrangement of organism on the basis of evolutionary relationship. When we are judging that these organisms are more related phylogenetically or evolutionary than the other, then this is known as systematic. जब हम organism को ऐसे arrange कर रहे हैं कि ये पिछड़े वर्ग के हैं, राइट, ये पुराने हैं और ये अभी अभी एवोल्यूशन हुआ है, ये नए हैं और ये एक जैसे हैं, तो इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक. जैसे कि ये तीन हमने इसमें क्या ली, तीन स्पीशीज ली, ए, बी एंड सी, एंड दे हैव अ एंसेस्टर ओ, राइट. दे हैव एन एंसेस्टर ओ. दे ऑल आर हैव अ कॉमन एंसेस्टर ओ. सो लेट्स सी हैव एवोल्यूट फ्रॉम दिस इन अ वेरी सो अगर हम इस लाइन को एक टाइम पीरियड मान लें कि आपका ये कुछ पुरानी सदी से अब तक का चलता हुआ आ रहा है, तो ए और बी एक साथ एवोल्यूट हुए हैं और बहुत ही एडवांस है. सी प्रिमिटिव है क्योंकि वो बहुत पहले ही एवोल्यूशन हो चुका है, उसका बहुत पहले ही वो चेंज हो चुका है, बन चुका है. तो सी इनसे और ये इनसे इनके बहुत बाद में बना, इनके बहुत पहले बना है. तो सी अलग है और ये दोनों एक ग्रुप में आएंगे, ये अलग ग्रुप में आएगा. ऑल्दो इन सबका एंसेस्टर क्या था, ओ, एक एंसेस्टर था इनका ओ. ओके, so that's how the arrangement is done. Carolus Linnaeus has used this term first time in his publication, the kind of book in Systema Natura, where he arranged many where he prepared many arrangement for the organism classification. Now the other term is taxonomical hierarchy. No, I'm sorry, this is wrongly typed. It should not be taxonomical hierarchy. Let me type it again here. Okay, it's taxonomical aids. Taxonomical aids. So these are taxonomical aids. Okay, taxonomical aids instead of this is taxonomical aids है ये. Taxonomical aids क्या है? They are a kind of supporting material, helping material that helps to study the classification, that helps to study the organisms present all over organism presents, right. So उनको स्टडी करने में जो मदद करें वो है टेक्सोनमी. दे कैन बी द कलेक्शन ऑफ सैम्पल, राइट, कलेक्शन ऑफ डेड डिके और रिमेन्स ऑफ सैम्पल. They can be preserved organism that we have preserved somehow, right, and that helps in identification purpose. Okay, let's see. There is herbarium. Number one is herbarium. In herbarium you can see the plant remains, right. You can see there are books in which many sheets are right. These are kind of files in which you can see there are many sheets, and in these sheets you can see there's a leaf and stem and flower and that are pasted, and here you can see some of the written part about it. So these are called as herbarium. Now you can see ये गेंदे का फूल है, यहाँ पर आप इसका फूल देख सकते हैं, ये रूट देख सकते हैं, स्टेम भी यहाँ पर है, ये इसके प्लांट मेल एंड फीमेल पार्ट्स हैं, राइट. यहाँ पे भी यही चीज़ है, इसका इन्फ्लोरोसेंस ये दिखा रखा है. ओके, लेट्स सी व्हाट आर द herbarium. Herbarium are the storehouse of pressed and preserved plant specimen.
प्लांट स्पेसिमेन मीन्स इट इज़ नॉट लिविंग, इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ प्लांट। तो कुछ प्लांट पार्ट जो कि हमें नीडेड होते हैं, राइट, उनको हम शीट पे पेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसे प्रेस करते हैं और उनको इस तरह से रख देते हैं। फीचर क्या है इसके, ये डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट है, राइट। इसमें स्पेसिफिक प्लांट पार्ट्स पेस्ट किए जाते हैं, पेस्ट करने के बाद उसे प्रेस किया जाता है, राइट। किस पे, लार्ज शीट्स पे। काइंड ऑफ दिस ब्लॉटिंग पेपर इज़ अ काइंड ऑफ पेपर दैट इज़ यूज इन न्यूज़पेपर, बट इट इज़ सर्टेनली थिक होता है ये। Along with it, on the left side, there is the name of the species in a large one, right? There is the name of species, place of origin, यानी आपने कहाँ से उसे कलेक्ट किया है, किसने कलेक्ट किया है, right? नेम ऑफ पार्ट जो आप पेस्ट कर रहे हो, प्लांट के पार्ट्स जो आप पेस्ट कर रहे हो, कोई प्लांट प्रोडक्ट, जैसे कि अगर रबर का पौधे का आप कुछ और लगाएंगे तो आप उसमें रबर लेटेक्स लिखेंगे जो आपने इसमें प्रोडक्ट बनता है, राइट। अलॉन्ग विद दैट क्लासिफिकेशन, जो आपने स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर ये सब देखा था, वो भी आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा फॉर अ सिंगल स्पीशीज़, एंड दिस इज़ रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। दीज आर कॉल्ड एज हर्बेरियम, राइट। फाइनली लिखने के बाद आप उन्हें न्यूज़पेपर से या फिर सेलोफेन शीट से कवर कर देंगे सो दैट द पार्ट्स विल नॉट लॉस्ट, एंड उसको स्टोर कर देंगे ऐसे लार्ज रैक्स में, फाइल्स में, रिपोजिटरी साइट पे। Second one is botanical garden. You can see there are living plants, they are not dead remains, and this area you can see this is of Delhi, right? Botanical garden. Here you can see again large gardens, right? That is at the queue. What is this? ये जो थाल जैसे दिख रहे हैं आपको, थाली जैसे दिख रहे हैं, no, they are not thali, they are leaves of lotus, right? So what kind of these storage are? Botanical garden are specialized garden that have collection of living plants for reference or for study, right? For reference or for study. Plant specimen in these are grown for identification, each plant is indicated with a botanical or scientific name, botanical and scientific name along with family लिखा रहता है। इसमें बहुत सारे एक्जॉटिक प्लांट जो है वो ग्रो किए जाते हैं और उन्हें डॉक्यूमेंट भी किया जाता है कि कौन से नंबर पे कौन सा प्लांट ग्रो कर रहा है, राइट। दिस इज़ ऑल्सो फॉर द रेफरेंस, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पर ये प्लांट पाया जाता है। एक्जॉटिक लिखा हुआ है, दैट मीन्स कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो किए जा रहे हैं जो हर जगह नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं। एग्जाम्पल है बोटानिकल गार्डन एट क्यू, नेशनल बोटानिकल सेंटर लखनऊ, राइट, ओके। नेक्स्ट आर म्यूजियम्स। यू हैव सीन दिस इज़ ऑफ कोलकाता एंड दिस इज़ ऑफ दिल्ली, राइट। आई हैव गिवन योर पिक्चर्स। और आपने स्कूल टाइम पे, क्योंकि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए ही होते हैं ये सेटअप्स, स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे यू और ड्यूरिंग एक्सकर्शन यू हैव सीन म्यूजियम्स, राइट। दे हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एज वेल एज एनिमल, राइट, बट नॉट ऑफ लिविंग, ऑफ कोर्स इट इज़ ऑफ डेड्स, ठीक है। ये लिविंग के नहीं होते, डेड ऑर्गेनिज्म के होते हैं। स्पेसिमेन जार्स में प्रिजर्व किए जा सकते हैं, इंसेक्ट जैसे हैं वो बॉक्सेस में प्रिजर्व किए जा सकते हैं। जो लार्जर एनिमल्स हैं, बर्ड्स और मैमल्स, उन्हें स्टफ़ किया जाता है और फिर प्रिजर्व किए जाते हैं। कुछ एनिमल स्केलेटन के फॉर्म में भी म्यूज़ियम में प्रिजर्व किए जाते हैं, ओके, राइट, ओके। द नेक्स्ट आर जूलॉजिकल पार्क्स, जू जिसे आप नॉर्मली जू कहते हैं, एंड हेयर यू हैव नेशनल जूलॉजिकल पार्क, राइट। What are they? These are the places where wild animals are kept protected. The main line is, these are the places where wild animals are kept protected, right? And having conditions similar to their natural habitat, right? Under human care. ज़ू ऐसे प्लेसेस होने, पिंजरे नहीं होते ज़ू, क्योंकि आप तो विज़िट करने जाते हैं, आपको लगता है कि वो पिंजरे में है, बंद है, नहीं, वो सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए उन्हें बंद कर रखा है। अदरवाइज दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद नेचुरल हैबिटेट कंडीशंस उन्हें दी जाती हैं, ताकि जो जानवर है उसे ये ना लगे कि वो एक केज में है, राइट, और वो आराम से रह सके। तो नेचुरल हैबिटेट दिया जाता है, ह्यूमन केयर दी जाती है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है।
स्पेशली ज़ूलॉजिकल पार्क बनाए जाते हैं या उन्हें घोषित किया जाता है जहाँ पर वो एनिमल्स रह सकें जो कि अभी एक्सटेंट होने वाले हैं, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए होते हैं. So of course the first line, protection of vulnerable animal. Vulnerable animal means those that are protected of being extinct, जो आगे जाके ख़त्म होने वाली है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन उन ऑर्गेनाइजम्स को देख नहीं पाएगी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़ूलॉजिकल पार्क होते हैं. क्यों नहीं देख पाएगी? क्योंकि इनका क्या हो रहा है, पोचिंग हो रही है, इलीगल किलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजम्स. सो इलीगल किलिंग है लिविंग बीइंग की, इलीगल किलिंग है एनिमल की, तो उसे पोचिंग कहते हैं, ताकि उनका कुछ यूज़ हो सके, इसलिए उनको पोच किया जाता है, उनको इलीगल तरीके से मारा जाता है. These parks also act as visiting site for tourists. Of course zoo visiting site होते हैं, हमें पता है, राइट. यहाँ पर हमें स्पेसिफिक कैरेक्टर पता चलते हैं, फूड हैबिटेट पता चल जाते हैं उन ऑर्गेनिज्म को देख देख के, लिविंग और एनिमल्स को देख देख के. एग्जाम्पल है नंदन कानन उड़ीसा और इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रिजर्वेशन इज की क्या है? टेक्सोनॉमिकल एज है that are based on similarity and dissimilarity. They are for identification of plants and animal. प्लांट एनिमल की टेक्सोनमिक कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने के लिए की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी. बट व्हाट आर कीज? ये की होती क्या है? Keys are based on contrasting characters called as couplet. Now, अगर हम की डिज़ाइन कर रहे हैं तो माइंड द थिंग कि की जो है वो टेक्सोनमिक कैटेगरीज़ के लिए होती हैं, यानी स्पीशीज़ के लिए या 5-6 अलग होंगे. जैसे अगर हमें 5-6 स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंस बताना है तो स्पीशीज़ के लिए अलग आपकी की होंगी, फैमिलीज़ के लिए अलग होंगी. हमें जैसे 5-6 फैमिलीज़ में से बताना है, हमारे सामने स्पेसिमेन रखा है, हमें बताना है कि किस फैमिली को बिलोंग करता है. सो हमारे पास हमारे पास 2 स्टेटमेंट होंगी, राइट. जैसे कि लीव्स आर पैरेलल वेनेशन, leaves are in parallel venation. Next, leaves are in reticulate venation. Okay, when we are saying leaves are in parallel venation, leaves are in reticulate venation, दोनों ही बात जो है वो लीव्स के बारे में है, क्योंकि दोनों ही बात लीव्स के बारे में है. सो दिस इज़ अ कपलेट, राइट. इसको हम क्या कहते हैं? कपलेट. और एक कपलेट में 2 स्टेटमेंट है, दोनों क्या है? कंट्रास्टिंग है. एक कह रही है पैरेलल है, धारीदार है, एक कह रही है जालीदार है, रेटिकुलेट है. दोनों ही लीव नहीं हो सकती, कोई एक हो सकती है लीव्स तो, राइट. या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, दोनों कभी सही नहीं होंगे. अगर ये सही है तो ये वाला नहीं हो सकता, राइट. और अगर ये सही है तो ये वाला नहीं हो सकता, राइट. सो for every taxonomic category we have a couplet, and every couplet have 2 different statement that are contrasting, जो अलग अलग हैं, बिल्कुल ही अपोजिट हैं. इसको हम कहते हैं, हर स्टेटमेंट को हम कहते हैं लीड. ये है लीड 1 और ये है लीड 2. ये है लीड 2. ओके. अच्छा, अगर लीड 1 आपकी सही होती है तो ये क्या होते हैं? कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? मोनोकोटिलिडने, राइट. और अगर ये वाली सही होती है, ये गलत है, तो फिर ये कौन सी उसको बिलोंग करेगा? डाइकोटिलिडन. Okay, that's how keys work. They are analytical in nature. Analytical means they are able to differentiate कर सकते हैं वो, और अलग अलग differences बता सकते हैं. Analytical है. Now sixth part for the study or the preservation taxonomic aids, flora. Flora किसके लिए होते हैं? Flora is basically to define habitat and distribution of plants. तो एक पर्टिकुलर प्लांट अगर किसी एरिया में मिल रहा है तो आप उसकी फ्लोरा चेक करें. सो फ्लोरा और फौना इज़ फॉर एनिमल, राइट. फौना ये नहीं दे रखा है, बट फौना इज़ फॉर एनिमल.
तो अगर हमें राजस्थान का फ्लोरा देखना है और हम इस तरह से, तो राजस्थान के फ्लोरा के लिए अलग एक मैनुअल राजस्थान की फ्लोरा के लिए अलग एक बुक, एक रिसर्च पेपर है जिसमें सारे राजस्थान के फ्लोरा के बारे में लिखा हुआ है। दिल्ली के फ्लोरा के बारे में अलग एक बुक में लिखा हुआ है, राइट। फ्लोरा मीन्स उनके वहाँ पर प्लांट जैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो जैसे कि एक खेजड़ी ट्री है, खेजड़ी ट्री, तो खेजड़ी ट्री राजस्थान में स्पेसिफिकली कहाँ मिल रहा है, कौन कौन से रीजन में ज़्यादा है, वो आपको इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट इज मैनुअल्स। मैनुअल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज। मैनुअल बेसिकली नेम पे बेस्ड है, यानी सारे स्पीशीज़ के नाम उसमें मेंशन है, राइट। कौन से इस एरिया में कौन से स्पीशीज़ हैं उनके नाम पे बेस है। मोनोग्राफ, मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन, किसी भी एक टेक्सॉन पे, जैसे कि जीनस के लिए अलग मोनोग्राफ होगा, फैमिली के लिए अलग मोनोग्राफ होगा, स्पीशीज़ के लिए अलग मोनोग्राफ होगा, राइट। ओके, सो दैट्स हाउ these taxonomic aids work. Okay, last but not the least thing that I want to tell you, contribution of the scientist for the respective chapter I'm taking. Number 1 is Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus is father of taxonomy as well as father of binomial nomenclature. Second is a very basic one that you need to know when you have started this study, Aristotle, father of biology, right. Father of geology is also Aristotle. Geology is the science of or the study of animals. Third is Theophrastus, father of botany, right, study of plants, father of botany. Botany is the study of plants. Now when you have known plants and animals, now अब दूसरे father देखते हैं, that is for the माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जीवों की जो हम सीख लेते हैं, सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं. दिस फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज एंटोनी वैन लिवनहुक, राइट. So these are the 4 scientists I am giving you for the reference, or that are may or may not be provided in the chapter, but do the needful for you. Okay everyone, thank you. This chapter is over and the link is given below.